Hi everyone, welcome back to Mind Review. This is your Sisreli series where we are covering all the 15 chapters of your Sisreli book one by one, part by part and in detail. ठीक है, तो as you all know कि हम लोग chapter 14 psychological disorders पे हैं and today's video is part 3 of chapter 14. So in the first two parts we had a brief introduction of this chapter. In the second part we talked all about your anxiety disorders, and today we will be talking about obsessive compulsive disorders, we'll be talking about trauma and stress related disorders, and finally we'll be talking about the causes of your anxiety, your obsessive compulsive, your stress and trauma related disorders. Cool. So make sure you have your notebooks and pen right with you and we begin. All right, chalo. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है आपका OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स. अर्लियर जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स आपके एंजाइटी के डिसऑर्डर्स के साथ ही कंबाइंड थे, बट नाउ इन द न्यू रिवाइज्ड DSM दिस हैज अ सेपरेट कैटेगरी नेम्ड एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स. तो अगर हम OCD की बात करें तो OCD में आपके ऑब्सेशंस आते हैं और कंपल्जन्स आते हैं. नाउ व्हाट आर दीज? ओके, so obsessions and compulsions. Obsessions are nothing but your intruding thoughts that occur again and again. Okay, बार बार वही एक thought आ रही है. Probably the thought that this is not going right, or something bad will happen, or something is dirty, or something is not correct in the correct pattern, or something like that. So it is very very intruding to the extent कि आप उस thought के अलावा कोई और चीज सोच ही नहीं पा रहे हो, and because that thought is occurring again and again. और फिर होते हैं आपकी कंपल्जन्स क्या होते हैं? बिहेवियर होते हैं. दीज आर रेपिटेटिव रिचुअलिस्टिक बिहेवियर और मेंटल एक्ट्स. तो अब ये जो बिहेवियर है ना, ये बिहेवियर आपका ओवर्ट भी हो सकता है, दैट मीन समथिंग दैट कैन बी सीन बाय अदर्स, और ये बिहेवियर कोवर्ट भी हो सकता है, दैट मीन्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय अदर्स. तो ओवर्ट बिहेवियर जैसे मोस्ट फेमस चीज ओसीडी के लिए कोट की जाती है, दैट समबडी इज वॉशिंग हैंड्स अगेन एंड अगेन or cleaning a particular space again and again. So that could be the overt compulsion or overt behavior. कोवर्ट कैसा हो सकता है कि वो मन ही मन कोई एक पर्टिकुलर चीज बार बार बोल रहे हैं, ओके, विद इन देयर माइंड, or they are repeating something within their mind. So nobody is able to see that, nobody is able to hear that, because they are doing within the mind. So that will be a covert compulsion. तो ऑब्सेशंस होते हैं और ऑब्सेशंस के रिजल्ट में आते हैं कंपल्शंस, विच आर बेसिकली एमिंग टू रिड्यूस दीज ऑब्सेशंस. कंपल्जन में एक इंसान क्यों एंगेज करता है वो रेपिटेटिव और रिचुअलिस्टिक एक्ट्स या बिहेवियर्स में, ताकि जो उसके ऑब्सेशंस हैं, जो इंट्रूडिंग थॉट्स हैं, उनको वो किसी तरीके से रिड्यूस कर सके. Okay, so that's the meaning of obsessions and compulsions, where obsessions are related with your thought, compulsions are related with your behavior. तो ये जो compulsions हैं, they are meant to lower the anxiety that is caused by obsessive thought, as we have talked about it earlier only. और distress होता है एक individual को बहुत ज़्यादा अगर वो सक्सेसफुली अपने कंपल्शन को जो है कंप्लीट नहीं कर पाता. ठीक है, तो सपोज किसी का कंपल्शन है कि उसको एक पैटर्न में ही चलना है. Okay, if there are blocks, so they will leave this one block and jump straight away to the next block, then again leave this block and jump to the next block. So if they are walking in this pattern and this is a compulsion for them so as to lower the anxiety जो उनके जो भी specific obsessive thought है उसकी वजह से उन्हें हो रही है, and suppose by chance they are unable to skip this particular box and they put their feet or their leg on this box, so that will cause a lot of distress in them. Not the normal distress, ये कई बार हम लोग भी करते हैं कि ठीक है चलो skip करके चलेंगे और skip नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा. It's very common, we all also face, but here the distress is very very significant, which is easily visible, easily harming their other aspects of life also. So that is your obsessive compulsive disorder. Again, there is more to it, as I have always said in the videos related to psychological disorder, कि किसी भी disorder को आप सिर्फ एक वीडियो में समझ नहीं सकते हो, उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा लोगों को with those particular disorder. You might have to read up case studies, you might have to read up your DSM and ICD. ठीक है, so please do those things. चलो, now we'll move to another set of disorders that are your trauma and stress related disorder. तो यहाँ पे दो disorders आते हैं, ASD and PTSD. तो ASD होता है आपका acute
स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्यूट का मतलब ही क्या होता है, फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं दे अकर इमीडिएटली आफ्टर द ट्रॉमेटिक इवेंट. नाउ ट्रॉमेटिक इवेंट कुड बी एनी. ओके, ट्रॉमेटिक इवेंट एक नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है. इट कैन ऑल्सो बी इमोशनल अब्यूज और सेक्शुअल अब्यूज. एनीथिंग कुड बी अ ट्रॉमेटिक इवेंट फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के केस में जो सिम्टम्स होने हैं वो एकदम से जो ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है उसके बाद ही वो सिम्टम्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं. सिम्टम्स वुड इंक्लूड हैविंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी. डिसोसिएटिव सिम्टम्स होते हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिन्हें हम लोग मंडे को कवर करेंगे. बट इन जनरल डिसोसिएटिव सिम्टम्स क्या होते हैं कि पर्सन इज नॉट इन टच विद देमसेल्व्स, द पर्सन इज नॉट इन टच विद द एनवायरमेंट अराउंड देम ऑल्सो. ओके, देन देर आर रिकरिंग नाइटमेयर्स. नाइटमेयर किस चीज के, उसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बार बार नाइटमेयर आ रहे हैं. अब नाइटमेयर आ रहे हैं तो स्लीप में डिस्टर्बेंसेस रहेंगी, सही से सोए नहीं है तो इरिटेबल रहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम्स रहेंगी. सो ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स कैन बी सीन. और ये जो फ्लैशबैक्स आते हैं एक पर्टिकुलर ट्रॉमेटिक इवेंट के, दे लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 month फॉलोइंग द इवेंट. तो जब वो इवेंट हो चुका है तो उसके 1 month तक ये सिम्टम्स और ये फ्लैशबैक्स आते हैं. आफ्टर दैट इट इज नॉट देयर. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर. अब यही सारे सिम्टम्स अगर 1 month से ज्यादा लास्ट कर जाएं तो हम उसे बोल देते हैं PTSD, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. कि even after the traumatic event, even after 1 month of the traumatic event, the person is again and again having the flashbacks, the nightmares, the anxiety, the dissociative symptoms, then we will call it as post traumatic stress disorder. ठीक है, तो आज की वीडियो में हमें ये 2 डिसऑर्डर्स कवर करने थे. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इज द कॉजेस और द ईटियोलॉजी. कॉजेस को हम ईटियोलॉजी भी बोलते हैं. तो क्या कॉजेस हैं उन एंजाइटी डिसऑर्डर्स के जो हमने कल पढ़े थे, जो ट्रॉमा रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं. ओके, सो देयर कैन बी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स दैट आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन देयर ओन व्यू पॉइंट ऑफ द कॉजेस. बिहेवियरल अपना बताता है, कॉग्निटिव अपना बताता है, बायोलॉजिकल है, कल्चरल है. ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉजेस. बिहेवियरल व्यू पॉइंट तो कहते हैं कि भाई ये जो एंशियस बिहेवियर है, जो फियरफुल बिहेवियर है कि हमें किसी चीज से डर लग रहा है, हमें फियर हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर लर्नड. ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर विद इन दिस सिसरेली सीरीज ओनली, जब हम लोग शुरू के कुछ चैप्टर्स पढ़ रहे थे स्पेशली द हिस्ट्री, सो बिहेवियरिज्म ने हमने एक एक्सपेरिमेंट की बात की थी दैट वाज रिलेटेड टू लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट डन बाय जॉन वॉटसन. रिकॉल दैट. ठीक है, तो एल्बर्ट ने जो बिहेवियर था उसका, एंशियस बिहेवियर, या द फैक्ट दैट दिस चाइल्ड लिटिल एल्बर्ट वाज स्कैर्ड ऑफ एवरी वाइट थिंग आफ्टर दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट वाज लर्नड ओनली. लर्नड ही तो थी, शुरू में तो वो बिल्कुल नहीं डरता था ना उस वाइट माउस से ना किसी और वाइट चीज से. बट आफ्टर दैट द चाइल्ड वाज सो स्कैर्ड. सो बिहेवियरल व्यू पॉइंट कहता है कि जितना भी एंशियस बिहेवियर है ये सब हम लर्न करते हैं from our surroundings or through conditioning. Then the cognitive viewpoint says कि जो illogical और irrational thought process है उसकी वजह से हमें एंजाइटी होती है. That because our thought is irrational, it is not logical at all. That is why we have to face all of these anxiety. तो यहाँ पे illogical और irrational thoughts के कुछ examples हैं, जैसे कि magnification. मैग्निफिकेशन में क्या होता है, ये एक टेंडेंसी है जहां पे हम किसी भी सिचुएशन को बहुत ज्यादा डेंजरस तरीके से या बहुत ज्यादा हार्मफुल तरीके से देखते हैं जबकि वो इतने हार्मफुल है ही नहीं. तो मे बी मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई. नाउ आई विल मैग्निफाई दैट इवेंट सो मच इन माई माइंड दैट ओ माई गॉड माई लाइफ हैज एंडेड, व्हाट विल आई डू, आई विल हैव नो फ्यूचर एट ऑल, and then I'll have nothing to eat, I'll not be able to feed my family. So I'll magnify that event to such an extent, to such a dangerous extent in fact, that I myself will get scared. So that is magnification, again an illogical way of seeing an event. So illogical thought process. फिर आपका ऑल और नथिंग थिंकिंग आता है. ऑल और नथिंग थिंकिंग में क्या आता है कि कई लोगों का एक टेंडेंसी होता है दैट दे थिंक कि मेरी जो परफॉर्मेंस है किसी भी चीज में, वेदर इट इज इन एजुकेशन, वेदर इट इज इन एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स और इन कम्युनिकेटिंग विद माई फ्रेंड्स और फैमिली, एनीथिंग, माई परफॉर्मेंस शुड बी वेरी वेरी परफेक्ट एंड एब्सोल्युटली परफेक्ट. अगर वो परफेक्ट नहीं हुआ then the result will be total disaster. So they do not
think that something can be average also. So I can be mediocre also in certain things. I need not be exceptional in everything. But they do not think, they see कि या तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए या फिर वो चीज बिल्कुल एक फेलियर है. एंड देन दे ऑल्सो रिलेटेड टू देमसेल्व्स दैट इफ आई एम नॉट एबल टू डू दिस देन आई एम ऑल्सो अ फेलियर. सो दैट इज योर ऑल और नथिंग थिंकिंग अगेन, विच इज एन इलॉजिकल थॉट प्रोसेस. फिर आपका आता है ओवर जनरलाइजेशन. ओवर जनरलाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल नेगेटिव इवेंट हो गया आपकी लाइफ में, ठीक है, अब आप उस सिंगल नेगेटिव इवेंट को ऐसे देख रहे हो एज इफ यू हैव जस्ट फेल्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. सो फेलिंग वन पर्टिकुलर एग्जाम सपोजिटली, और अगर कोई ओवर जनरलाइजेशन कर रहा है तो दैट पर्सन वुड सी दिस थिंग एज इफ दे हैव फेल्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ. और आगे जाके वो किसी भी एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे, उनका कुछ नहीं होगा जीवन में, उनको सारे लोग हेट करते हैं, फैमिली मेंबर्स भी पसंद नहीं करते मुझे क्योंकि मैंने ये एग्जाम फेल कर दिया. सो दैट विल बी ओवर जनरलाइजेशन कि एक छोटे से नॉट छोटा सा नेगेटिव इवेंट तो नेगेटिव ही होता है, ठीक है, एक सिंगल नेगेटिव इवेंट को वो एक नेवर एंडिंग पैटर्न ऑफ डिफीट में ले जाते हैं कि अब मेरा ये जो फेलियर है ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये कभी मेरा पीछा छोड़ेगा ही, समथिंग लाइक दैट. सो अगेन दैट्स इलॉजिकल. इसकी वजह से फिर एंग्जाइटी हो सकती है. देन देयर इज मिनिमाइजेशन ऑल्सो, जहां पे ओवर जनरलाइजेशन हो रहा है नेगेटिव इवेंट्स का, वहां पे मिनिमाइजेशन होता है पॉजिटिव इवेंट्स का. कई बार कि ये एक डिस्टोर्शन होता है फिर से थिंकिंग में, जिसमें इंसान क्या करता है कि जो नेगेटिव इवेंट्स हैं उन्हें तो बिल्कुल ही ब्लो कर देता है कि भाई ये हुआ मेरे साथ, इतना बुरा हुआ, आई फेल्ड दिस, आई फेल्ड दैट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. लेकिन जो पॉजिटिव इवेंट्स हैं उनको बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है. मे बी दे हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड वन पर्टिकुलर एग्जाम एंड फेल्ड इन अनदर, बट जो फेल्ड वाला था, जो नेगेटिव वाला था, उसको तो वो एकदम से ब्लो कर देंगे, मैग्नीफाई कर देंगे. बट जो पॉजिटिव वाला था इवेंट, जिसमें उन्होंने एक एग्जाम क्लियर भी किया था, उसको वो बिल्कुल निग्लेक्ट और मिनिमाइज कर देंगे. सो अगेन व्हाट इज हैपनिंग, आई एम नॉट बीइंग वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट actually I've done. I'm not able to focus on my own strengths, rather I'm focusing just on the weakness or the negative events that have happened. So that will again lead to anxiety. तो cognitive viewpoint ये कुछ बातें कहता है. फिर biological viewpoint क्या कहता है कि भाई हमारे जो genetic factors होते हैं, they might be responsible for anxiety. Maybe we are inheriting this anxiety, and they are also referring to specific brain areas. अगर किसी specific brain area में dysfunction आ जाता है या फिर neurotransmitters के जो balance है वो खराब हो जाते हैं, then that can also lead to anxiety. Finally you have your cultural viewpoint. Cultural viewpoint says कि disorder जो है वो specific होते हैं to certain cultures. कुछ कल्चर्स के हो सकता है रिचुअल्स, ट्रेडिशंस ऐसे हों जिसकी वजह से ये जो एंग्जाइटी है, एंक्शियसनेस वाला बिहेवियर है वो आ रहा है. सो डिसऑर्डर स्पेसिफिक है कल्चर से, तो एंग्जाइटी भी स्पेसिफिक हो सकती है टू सर्टेन कल्चर्स. दैट इज ऑल दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. तो आज हमने आपके एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ओसीडी और इनके कॉजेस, कॉजेस, वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली है, ठीक है. आई होप दैट यू गाइज हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम टुडेज वीडियो, और एटलीस्ट जो आपके ये जो कंसेप्ट्स हैं वो रिवाइज होकर पक्के हो गए होंगे, कुछ अच्छे तरीके से आपने आज समझा होगा. इफ दैट हैज हैपेंड, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू दीज 3 थिंग्स. यू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि जब नई वीडियो आए तो आप लोगों को पता लग जाए कि ठीक है भाई वीडियो आ चुकी है और अब मुझे पढ़ लेना चाहिए फ़ोन चलाने की जगह, ठीक है. एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर साइकोलॉजी मेट्स, योर फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो इन द सेम फील्ड एज योर्स, हु माइट बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोज़. That will be all from my side today, and we'll meet tomorrow. कल हम लोग, not tomorrow, on Monday, because Saturday and Sunday is off. You have to revise everything that you have done throughout the week on this weekend. ठीक है, Monday को हम लोग मिलेंगे with another part of this very chapter, and we will be talking about another set of disorders called dissociative disorders. तो उनको cover करेंगे Monday को, and hopefully in the next week we will be covering with this chapter 14 also. Till then, have a very very good day, have a happy weekend, and advance में ही आप सभी को a very happy new year. And make sure you know do not indulge in those goal making things कि बिल्कुल strict goals, अपना out of league goal set करो. Try to set smart goals जो कि specific है,
आपके लिए अटेनेबल हैं, मेजरेबल हैं, ठीक है। ये सब हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो थोड़ी अप्लाई भी करते हैं इस बारी। कुछ ऐसे गोल सेट करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो हम लोग अचीव कर सकें और जो हमारे लिए रियलिस्टिक भी हो, ठीक है। सो विद दैट नोट आई लीव यू गाइज एंड वील मीट नेक्स्ट ईयर ऑन मंडे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।